Yes, list of formulas. So list of formulas इसमें क्या क्या आता है? So पहले मैंने बताया था that is the volumetric strain. So volumetric strain का formula है that is the change in volume to original volume. Okay. So next thing is you know that Poisson's ratio. Poisson's ratio का formula है that is lateral strain to linear strain, right? So lateral strain के लिए that is L, that is the lateral, I can say it is, and this is the linear strain. So this is the formula for the Poisson's ratio, and next is we know the relation between E is equal to that is 3K 1 minus 2 mu. So again relation between A and G, that is 2Z 1 plus mu. So and relation between E G K. So anyone can you tell me what is the relation between E G K formula? So that is 9 GK or kg, 9 GK upon 3K plus G. Am I right? Is it correct? Okay. So these are the formulas which are related for the that. Okay. So now I will go for one numerical, this one, and you people just go to this one. So here example one, that is a material of 1.25 into 10 raised to 5 Newton per mm square. A material of 1.25 into 10 raised to 5 Newton per mm square, and Poisson's ratio of 0.25 is calculating modulus of rigidity. Calculate the G and K values. G and K values. So this is a very simple numerical I have considered. Okay, because we want to start with the very simple numerical, then we shall go for the quite difficult numericals. So here you can read this numerical, a material of that is 1.25 to 10 raised to 5 Newton per mm square. So what is this meaning 1.25? So this is the E value. Okay, that is the modulus of elasticity is given, and Poisson's ratio is that is a 0.25 is given, and here we want to calculate the modulus of rigidity and bulk modulus of the material. Okay, एक मटेरियल है, मटेरियल का प्रॉपर्टी दिया गया है, E वैल्यू दिया है, Poisson's ratio दिया है, एंड रिमेनिंग K वैल्यू एंड G वैल्यू कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर मटेरियल का. So quickly we want to solve here. So here solution is जो भी दिया है आप लोग लीजिए, that is E value is 1.25 to 10 raised to 5, that is megapascal, and mu value is given, that is 0.25, and here what we have to find out here? Here we want to find G and K. G and K. So here first thing is already we know the relation E and G and E and K. We have to use and we have to calculate here. So first I want to calculate G value, so that here I am going to use E equal to that is 2Z 1 minus mu. Okay, E value is 1.25 into 10 raised to 5. So already it is given Newton per mm square. There is no need to conversion. Directly we have to take it. So 2 into G and 1 minus it is mu. So it is 1 plus it, not 1 minus it, right? 1 plus है ना वो? हाँ 1 plus है.
1 plus. So here G is unknown. So here I have not written anything, and mu is given. That is 1. That is a 0.25. So this will be 0.25. So you people calculate and tell the answer. So G value is in terms of Newton per mm square, because E value is Newton per mm square. So mu value is that is not having any unit. So G value will be Newton per mm square. That is a modulus of rigidity. So modulus of rigidity क्यों आता है? Because of the shear stress to the shear strain it is. Sir, G value equals to 50,000. 50. Yes, 50,000 Newton per mm square, right? Yes, sir. Yes, sir. So you converted into a kilonewton per mm square, or otherwise just to express in terms of that is 10 raised to 3. So अगर 50 50,000, kilonewton per meter square. यस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं उसको 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 50 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं. So here both we can write it is 50 is 50 into 10⁻³ Newton per mm square, or otherwise 50 kilonewton per mm square. So in this way we can express. And next thing is here we want to calculate the K value. So K value कैसे calculate करना है? Here we have given the relation E equal to 3K 1 minus 2 mu. So E value is 1.25 into 10⁻⁵, and 3 and K will be unknown. 1 minus 2 into 0.25. So you will get the K. Again, K is also expressed in terms of Newton per mm square. Sir, 83.33 into 10 raised to power 3. Yes, correct, exactly. So that is 83.33 into 10⁻³ Newton per mm square, or 83.33 kilonewton per mm square. Kilonewton per mm square. Okay. So here this is the properties of the material, that is a K, G and E are the properties. Okay. With respect to this one, we are going to calculate the material properties. So now we shall go for another numerical, and you will understand the. Shall I go next? Shall we go next? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ पहला न्यूमेरिकल, आप लोग ध्यान से सुनिए. A bar of cross section 8 mm by 8 mm is subjected to axial pull of 10 kilonewton. The lateral dimensions of the bar are found to be reduced by 2 into 10⁻³ mm. Find the Poisson's ratio and modulus of elasticity, assuming G equal to 80 gigapascal. G equal to 80 gigapascal. So means यहाँ पे एक बार है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 8 mm by 8 mm. दैट इंडिकेट्स यहाँ पे उसका स्क्वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका लेंथ दिया नहीं गया है, नहीं दिया, उसका हमको जरूरत नहीं लेंथ का. एंड जो क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सेक्शनल के ऊपर 10 किलो न्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है, दैट इज इन ए पुल. पुल इज नथिंग बट द टेंशन. The lateral dimensions of the bar are reduced by 2 into 10⁻³ Okay. यहाँ पे जो ड्यू टू दी दिस एक्सियल पुल के वजह से उसका lateral dimensions डिक्रीज हो रहा है. That is lateral dimensions डिक्रीज हो रहा है 2 into 10⁻³ mm. Find the Poisson's ratio and modulus of elasticity assuming G equal to 80 gigapascal. Okay, ऐसा यहाँ पे दिया गया है. So now I will draw the cross section first. Okay, so इसका मैं cross section ड्रा करता हूँ. Okay, ये जो
Imagine karo, this is a rectangular bar which is subjected to axial pull of 10 kilonewton. Okay, इसका cross sectional area ऐसा है. This is the cross sectional area. This side is 8 mm and this side is 8 mm. But length is don't know. Length दिया नहीं. There is no need of length. So बिना लेंथ से भी हम लोग सारे रिमेनिंग पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. So here is the 10 kilonewton and इसका भी डायमीटर नहीं दिया है. ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमीटर का भी जरूरत नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. एंड हियर lateral strain is given, that is a lateral dimensions is given, that is nothing but lateral strain it is. Lateral strain is nothing but what? अगर ये एक्सियल पुल की वजह से क्या हो रहा है, रिमेनिंग साइड्स जो हो रहा है, सो उसका डायमेंशंस डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये फुल फोर्स टेंसाइल फोर्स है, रिमेनिंग साइड्स डिक्रीज हो रहा है. उसका लैटरल स्ट्रेन इज 2 into 10 to the power of -3 mm. So that is a deformation, you can say. That is a lateral deformation. And G value is given. G value is 80 gigapascal. अगर आप लोगों को पता है गीगापास्कल को कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर को, that is 80 into 10⁹ Newton per meter square. Newton per meter square it is. And directly I will write it is Newton per mm square. This will be 10⁵ Newton per mm square. So this is a G. This is a G. Okay, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली? हमको कैलकुलेट करना है E वैल्यू एंड पॉइजन रेशियो. ओके, सो उसके लिए देखिए क्या पहला क्या कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट थिंग इज हियर वी नो दैट हियर वी वांट टू कैलकुलेट दिस स्ट्रेस. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द स्ट्रेस? आप लोगों को पता है स्ट्रेस वैल्यू इज दैट इज a P upon A, that is a cross sectional area. So P is 10 kilonewton. इसको कन्वर्ट कीजिए न्यूटन को 10⁵. क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? 8 into 8. So that will be 64. So this is the Newton per mm square. 156.25. 156.25. 126.25. ठीक है, 156.25, right? 156.25 मीटर पर mm स्क्वायर. सो उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. How will you calculate the modulus of elasticity? Yes, here modulus of elasticity, that is E equal to stress upon strain. But what strain it is? It is a linear strain, right? It is a linear strain. It is linear strain. So already हम लोगों को पता है linear stress, that is 156.25 and linear strain is there. बट यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है लैटरल स्ट्रेन. सो लैटरल स्ट्रेन ऑलरेडी दिस गिवन. सो हाउ विल यू डिफाइन द लैटरल स्ट्रेन? सो लैटरल स्ट्रेन यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन थिकनेस टू ओरिजिनल थिकनेस और चेंज इन डेप्थ टू द ओरिजिनल डेप्थ. सो हियर इसका मैं इक्वेशन लिख सकता हूं चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस, बिकॉज़ यहां पे डेप्थ था, विड्थ है 8 mm एंड डेप्थ है 8 mm, लेंथ है L, जरूरत नहीं उसका. हियर दिस विल बी 2 into 10⁻³ 2 into 10⁻³ into
thickness. So here this lateral strain will be equal to, yes, change in thickness is given. Sorry, it is change in dimension is given. This is not a strain actually. So this is a lateral strain. So change in thickness is, ये जो है actually this is a delta T. Okay, ये strain नहीं है because that is expressed in terms of mm. mm में express किया तो क्या होगा? That is a lateral strain आ रहा है. Okay, that is a lateral dimension आ रहा है. Change in lateral dimension. That is not a strain. So यहाँ पे उसको ले सकता हूँ मैं 2 into 10 raised to minus 3 upon 8. Is it correct? Is it right? Yes, lateral dimensions दिया है ना, इसके लिए उसका क्या है? Change in thickness to original thickness or change in depth to original depth. Okay, change in depth कितना है? 2 into 10 raised to minus 3 दिया है, that is in terms of mm, and original depth है 8 है. So उसका कितना आ रहा है आंसर? That is a lateral strain आ रहा है 2.5 into something. Am I right? Yes, sir. 2.5 into 10 raised to minus 4. Similarly, I want to calculate the linear strain. So here, how will you calculate the linear strain? The linear strain that is change in length to the original length, or otherwise we can write it is in this way. This linear strain will be that lateral strain to Poisson's ratio, because हमारे पास डेल्टा एल भी नहीं है, ओरिजिनल लेंथ भी नहीं है, इसके लिए वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग. इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट लीनियर स्ट्रेन. इसके लिए हम लोगों को ऑलरेडी पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन पता है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें. पॉइजन्स रेशियो क्या बोलता है? इट इज द रेशियो ऑफ द दैट इज अ lateral strain to linear strain. Okay, so इसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. So lateral strain ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किया है 2.5 into 10 raised to minus 4 upon mu. लेकिन हमारे पास mu भी नहीं है. Okay, we don't have mu value. So उसके बाद E value यहाँ पे आगे हम लोग डिफाइन किया. E value सिग्मा बाई E linear, सिग्मा बाई E linear. ओके, E linear strain है. सो सिग्मा वैल्यू कितना है? दैट इज 156.25 divided by that is 2.5 into 10 raised to minus 4 upon mu. So ये बताइए कितना था E वैल्यू? 625 into 10 raised to power 3. 625 into 10 raised to 3 mu. ओके, ये जो mu है डिवाइडेड बाय वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर जाएगा. दैट विल बी द 625 into E. सो हियर E वैल्यू कहां कैसे मिले हम लोगों को? इन टर्म्स ऑफ mu में मिला. So now we know the G value. Already हमको G value दिया है 18 into 10 raised to 3 Newton per mm square. मैं उसका रिलेशन यूज कर सकता हूँ. Now I can use the relation between E and G. So here relation between E and G का फॉर्मूला that is E equal to 2G 1 plus mu. So E value कितना है? 625 into 10 raised to 3 mu 2 into G. G is 18 into 10 raised to 3 1 plus mu. तो आप लोग ये सिंप्लीफाई कीजिए, आप लोगों को mu वैल्यू मिलेगा. जो भी सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई कीजिए, आप लोगों को mu वैल्यू मिल जाएगा.
0.20 आया। 0.20 नहीं, चेक कीजिए एक बार और एक बार ठीक से। जीरो पॉइंट 34। हाँ, 0.34 इज करेक्ट। 0.34 इज करेक्ट। ओके, उसके बाद once you calculate the mu value, then we can calculate the e value. Okay, so मैं यहाँ पे e value calculate करता हूँ। So e value क्या है वो? That is 625 into 10 raised to minus 3 into 0.34. So this will be Newton per mm square. देखिए कितना आता है। Sir, 212.5 into 10 raised to power 3. हाँ, that is बराबर है। 2125 ना? 500। Okay, 5 into 10 raised to 3. So this is the value of the given material. पता नहीं है कौन सा मटेरियल है, बट उसका ई वैल्यू कितना आ रहा है? 212. So it is near to 2 is there. अगर ई वैल्यू 2 into 10 raised to 3 आता है, आपको 100 आता है, तो इसका माइल्ड स्टील बोलते हैं. So here it is the ranging value. So ई वैल्यू का माइल्ड स्टील के लिए ई वैल्यू सर्टेन रेंज है, वो रेंज में अगर ये वैल्यू आ गई तो that you can say it is the that material is a mild steel. Okay, so here this is how we are going to calculate. यहाँ पे once again we can see here what are the things we have calculated quickly. Initially उन्होंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, that is 8 mm का, एंड जो पर्टिकुलर दिस क्रॉस सेक्शनल के ऊपर उन्होंने 10 किलो न्यूटन लोड अप्लाई किया है, एंड लैटरल डायमेंशंस चेंज, दैट लैटरल डायमेंशंस दिया है, दैट इज रिड्यूस्ड बाय 2 into 10 raised to minus 3. उसके बाद पॉइजन्स रेशियो एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको कैलकुलेट करना था, एंड जी वैल्यू दिया था. सो इनिशियली हम लोगों ने कैलकुलेट किया स्ट्रेस. स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज P by A. P इज ऑलरेडी नो, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आप लोगों को पता है. एंड उसके बाद E वैल्यू है, E वैल्यू इज नथिंग बट दी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. डिफाइन करते हैं हम लोग स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन इट इज. ओके, स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन. उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना है लैटरल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है. सो लैटरल स्ट्रेन हाउ विल यू कैलकुलेट? That is change in depth to original depth or change in thickness to original thickness. So change in depth or lateral dimension जो है that is 2 into 10 raised to minus 3 and original depth है 8. So उसके हिसाब से मैं lateral strain कैलकुलेट किया. उसके बाद linear strain कैलकुलेट करना है. linear strain कैलकुलेट करने के लिए आप लोग change in length to original length है, लेकिन आपके पास original length भी नहीं है and change in length भी नहीं है. So that here we are going for the as per the definition of the Poisson's ratio. Poisson's ratio को आपको फॉर्मूला पता है, रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, वो यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट किया. उसके बाद जो ई वैल्यू हम लोग डिफाइन किया था, ई वैल्यू सिग्मा अपॉन लीनियर, सो उसका वैल्यू पुट किया तो आप लोगों को ये वैल्यू मिल रहा है. उसके बाद यूजिंग द रिलेशन ई एंड जी, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द म्यू. And once you calculated the mu, and here we have calculated the E value, that is 212.5 into 10 raised to 3 Newton per mm square. So this is the simple numerical. Is it clear? Yes, sir. Okay, fine. Shall you go? Yes, I will go another numerical on this one, and let's see that. Shall I go next? एक सेकंड. चाहिए। हाँ, ओके ओके, टाइम चाहिए आपको? हाँ सर, 5 मिनट। हाँ ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप लोग सॉल्व करो आराम से. मैं अब तब तक दूसरा पीडीएफ बना के रखता हूँ, क्योंकि ये पेज कंप्लीट हो गया मेरा.
एक सेकेंड, ये पेज काले है क्या? नहीं, ये भर गया है, मिडल वाला काले है क्या? गलती किया रे, ये पेज से खाली है एक्चुअली। एक सेकंड, ठीक है। शैल यू गो नेक्स्ट? ओके, मैं यहाँ पे डिक्ट आउट करता हूँ न्यूमेरिकल को, आप लोग ध्यान से सुनिए। A bar is subjected to a tensile load of 50 kilonewton. A bar is, bar मतलब क्या है? That is a circular bar है, okay? Circular bar is subjected to a tensile load of 50 kilonewton. Bar diameter is 32 mm. Gauge length is 300 mm. Extension equal to 0.114 mm. Change in diameter equal to 0.00366 mm. Find the Poisson's ratio, Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. So usually ऐसा क्वेश्चन को 6 मार्क्स के लिए पूछता है यूनिवर्सिटी में। तो once again मैं रीड करता हूँ न्यूमेरिकल। एक बार है, उसका डायमीटर है 32 mm एंड उसका एक टेंसाइल लोड सब्जेक्ट कर रहा है 50 किलोन्यूटन। गेज लेंथ दिया है, गेज लेंथ इज नथिंग बट दी दैट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बार 300 mm है एंड 50 किलोन्यूटन टेंसाइल लोड की वजह से इसका एक्सटेंशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज 0.114 mm। चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर मतलब क्या है? उसका लैटरली डायमीटर चेंज हो रहा है 0.00366 mm। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है पॉइजन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज जी। ओके, सो ये सारे हमको कैलकुलेट करना है। सो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करता हूँ, आप लोग देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। दिस इज अ सर्कुलर बार, सो कितना लोड? 50 किलोन्यूटन लोड, टेंसाइल, दैट इज अ टेंसाइल लोड। उसका लेंथ इज देयर लेंथ, उसका लेंथ नहीं दिया है, ओके, देयर इज नो नीड ऑफ लेंथ, लेंथ नहीं दिया। डायमीटर दिया है 32 mm। सर लेंथ 300 mm दिया है। दिया है क्या? एक सेकंड को मैं पढ़ता हूँ फिर से। टेंसाइल लोड, हाँ, गेज लेंथ दिया है ना, गेज लेंथ इज लेंथ दैट इज 300 mm, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है, दिया है। सो उसके बाद एक्सटेंशन दिया है, एक्सटेंशन इज नथिंग बट व्हाट? इंक्रीजिंग द लेंथ, सो दैट इज डेल्टा एल, दैट इज आई कैन से इट इज द नॉट डेल्टा एल, इट इज द डेल्टा एल, यू कैन से इट इज डेल्टा एल 0.114, the 0.114 mm। उसके बाद चेन विड्थ आया 0.00366 mm। इट इज नॉट स्ट्रेन, इट इज, ये स्ट्रेन नहीं है, ये सिर्फ आपको डिफॉर्मेशन दिया गया है। एंड और क्या दिया है? हाँ, इतना ही दिया है, हमको कैलकुलेट करना है टू फाइंड म्यू ई जी एंड के वैल्यूज, ई जी के वैल्यूज। ओके, सो आप लोग थोड़ा सोचिए, ऐसा आप लोगों को एक मेंबर है और लोड अप्लाई हो रहा है, उसका डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन लेंथ भी दिया है। उसके बाद म्यू कैलकुलेट करना है आप लोगों को। ओके, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग थोड़ा सा सोचिए, मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है।
ओके जैसा न्यूमेरिकल देखोगे आपको सडनली माइंड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूं मैं बोल के। यस सो उसके पहले मैं कौन सा फॉर्मूला के लिए जाऊंगा, चेंज इन लेंथ। ओके अगर मैं चेंज इन लेंथ फॉर्मूला चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल दैट इज पी एल अपॉन ए यूज किया तो आपको क्या मिल सकता है, पी आपके पास है, एल आपके पास है, ये भी है, ई वैल्यू नहीं, यस आपको ई वैल्यू मिल सकता है। ओके दैट इज फर्स्ट। यस PL upon AE is the first thing, that is delta L PL upon AE. Why we are using this PL upon AE? Because it is a uniform bar. Okay जो लेंथ दिया है throughout the length having the same diameter, so that it is a delta L. So here आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है, so ये is 5/4 into d square is 32 square, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो देखिए कितना आता है, डेल्टा एल पी इज 50 कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, किलो न्यूटन में है, दैट इज 10⁻³ एल 300 mm, A is 5/4 32 square E delta L क्या है, delta L is 0.144 is given, sorry it is 0.114 so आप लोगों को मिल जाएगा E वैल्यू। देखिए कितना आता है 163606.59 3.6 into 10 raised to power 6. ओके इन टर्म्स ऑफ 10 to the power 3 में बोलिए ना, इन टर्म्स ऑफ 10⁻³ हाँ 163604.9 into 10 raised to power 3. ओके मतलब 163 राइट, 163 पॉइंट समथिंग। हाँ ओके सो इट इज 163.6 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट इज 163 पॉइंट समथिंग, जो भी आपको वैल्यू आया है 163.6 into 10 raised to power 6 आ रहा है। 10⁻⁶ है क्या, एक सेकेंड चेक करो फिर से। क्योंकि देखो 50 into 10⁻³ किया आप लोग, 300 किया डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई किया इंटू 0.114 मल्टीप्लाई किया तो 10⁻³ आना चाहिए, 10⁻⁶ कैसा आता है? अगर 10⁻⁶ आ रहे तो उसका डिजिट ज्यादा रहेगा। चेक करो फिर से। कितना है आंसर? हाँ सर 163.6 into 10 raised to power 3. हाँ अभी बराबर ही आ रहा है, अभी बराबर आ रहा है। सही सही ओके ठीक है, क्या इसी में आपको गलती नहीं करने का। ओके ठीक है, सो दिस इज ई वैल्यू। उसके बाद हमको कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइजन्स रेशियो। ओके पॉइजन्स रेशियो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। सो पॉइजन्स रेशियो के लिए क्या है फॉर्मूला, सेकंड वन इज पॉइजन्स रेशियो lateral strain upon linear strain. Okay, lateral strain, how will you calculate the lateral strain? So
So lateral strain is change in diameter to original diameter. Change in dia to original dia. Change in dia कितना है? 0.00366 divided by 32. And linear strain. Linear strain के लिए क्या है? Change in length to original length. Change in length is 0.1114 divided by 300. Okay. So यहाँ पे आप लोग पुट कीजिए इसमें पॉइजन रेशो इक्वेशन में you will get mu value. देखिए बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा है ना क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं? 0.30. हाँ 0.30. Okay. 0.30. That is 0.3 is the value of Poisson's ratio. So उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है G and K. Again using a E and G formula. So E equal to 2Z 1 plus mu. So E value दिया है क्या? नहीं वाईफाई से रहे लैन भी कनेक्टेड किया यस सो अभी हमको कैलकुलेट करना है ई वैल्यू सो ऑलरेडी ई वैल्यू कैलकुलेट किया है एंड जी वैल्यू कैलकुलेट करना है सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ई वैल्यू 163.6 into 10 raised to 3. into 10 raised to 3 e 2 into g 1 plus mu is already 0.3 so आपको g मिलेगा that is in terms of megapascal similarly e equal to ak 1 minus 2 mu again e that is 163.6 into 10 raised to 3 3k 1 minus 2 into mu that is 0.3 so here you will get a k again k in terms of megapascal or it is a newton per mm square so आप लोगों को ये वैल्यू मिल गया so इसमें यही बोला है उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए पहला ये वैल्यू mu वैल्यू g वैल्यू एंड k वैल्यू ओके देखिए कितना आता है आंसर Sir, G value आ रही है 629.2 into 10 raised to 3. 1 second G value 629.2. 62952 okay it is correct but express you have to convert write in terms of 10 raised to 3 into 10 raised to 3 है. हाँ 10 raised to 3 रहेगा तो क्या होगा 62 point something आएगा हाँ 62.92 into 10 raised to 3 megapascal okay correct है and K value 136.3 into 10 raised to 3. हाँ exactly correct यूनिट कभी भी नहीं भूलना है ओके यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर दिस सब्जेक्ट अगर यूनिट नहीं लिखा है उसका नंबर का पीछे तो मीनिंगलेस है अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है तो उसका 200 लिखा है यूनिट नहीं है तो दैट विल नॉट गिव एनी मीनिंग टू नंबर so that unit is alive to the number so that unit कभी भी नहीं भूलना है ठीक है ओके बाकी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है सिर्फ 2 ही स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं
हाँ सर समझ रहा है। ओके 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 ठीक है। Shall we go further? नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स लेंगे। इसमें तो यही आएगा, लाइक इसमें जी वैल्यू मतलब पी वैल्यू दिया रहता है, ये वैल्यू दिया रहता है, डेल्टा वेल वैल्यू दिया रहता है, लैटरल डिफॉर्मेशन दिया रहता है, उसके बाद ई के ई जी के कैलकुलेट करना है एंड पॉइजन रेशियो कैलकुलेट करना है यूजिंग ये तीनों रिलेशन ई जी के का यूज करके। ओके, दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल जाएंगे अभी। दिस इज रिगार्डिंग दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में वो स्टार्ट करते हैं। ओके, shall I go further? यस सर। ओके फाइन। उसके पहले मैं फॉर्मूलाज लिखता हूं तो आप लोगों को इजी होगा। फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला है और यूनिएक्सियल फोर्स सिस्टम। ओके, यूनिएक्सियल फोर्स के लिए यूनिएक्सियल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, एक मेंबर रहेगा, मेंबर के ऊपर ओनली एक्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई रहता है, अप्लाइड किया रहता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल और कंप्रेशन। ओके, नेचर ऑफ फोर्स कैसा भी रहेगा, टेंशन भी रहेगा, कंप्रेशन में भी रहेगा, बट जो कॉन्सेप्ट है यूनिएक्सियल में रहेगा लोड। सो उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम ड्यू टू द यूनिएक्सियल फोर्स। So how will you calculate that one? Okay, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, change in volume to original volume, ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव किया था। So that is sigma by E 1 minus 2 times of mu. Am I right? Okay, यहाँ पे देखिए change, okay, with respect to due to this uniaxial force के वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कितना कैसा हो रहा है वॉल्यूम, हाउ विल यू कैलकुलेट द वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज स्ट्रेस अपॉन E into 1 minus 2 times of mu। ओके, सो ये जो स्ट्रेस है दैट इज अ डायरेक्ट स्ट्रेस अगेन, ये जो E है दैट इज अ लीनियर, दैट इज अ E वैल्यू विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, E वैल्यू कौन सा भी इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द लोड, उसका दैट इज अ प्रॉपर्टी, एंड mu वैल्यू है दैट इज अ पॉइजन रेशियो। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एंड बाईएक्सियल के लिए बाईएक्सियल फोर्स, बाईएक्सियल फोर्स मतलब क्या रहेगा, दो डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है, एक एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। सो ड्यू टू दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इंड्यूसिंग। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इज चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। सो here we are going to write it is sigma x plus sigma y upon E 1 minus 2 times of mu। सही है, बिकॉज यहाँ पे बाईएक्सियल फोर्स है, दो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके लिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इंटू 1 minus 2 times mu upon E। सो उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, हाउ विल यू कैलकुलेट द स्ट्रेन। ओके, सो यहाँ पे देखिए स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। सो अगर मुझे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है दैट इज लीनियर, दिस इज अ लीनियर स्ट्रेस। ओके, इट इज अ लीनियर स्ट्रेन नाउ। सो लीनियर स्ट्रेन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका सिग्मा x by E minus mu into sigma y by E। ओके, एंड अलग y डायरेक्शन। सो ये y डायरेक्शन के लिए हम लोग उसके कैलकुलेट करना है सिग्मा y upon E minus mu into sigma x upon E, because these are the strain, these are the linear strain, epsilon x epsilon z। now linear strain along that direction, yes इसमें भी strain है,
बट उसका सिग्मा जेड वैल्यू नहीं है। इसके लिए क्या है, माइनस म्यू इनटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इनटू सिग्मा वाई अपॉन ई। ओके, ई। So now I can calculate the volumetric strain. Volumetric strain क्या रहेगा आपको, अगर in terms of strain करेंगे तो that is summation of epsilon x, epsilon y, epsilon z. So these are the expression. अगर आप लोगों को volumetric strain in terms of strain में calculate करना है तो पहले epsilon x calculate करना पड़ेगा, epsilon y, epsilon z. ओके, अगर आप लोगों को volumetric strain calculate करना है in terms of stress, then we have to go for the sigma x plus sigma y. उसके बाद triaxial force की वजह से, triaxial force इज नथिंग बट 3 डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। triaxial force that is change in volume to original volume will be sigma x plus sigma y plus sigma z divided by E into 1 minus 2 times of mu. 1 minus, so अगर मुझे that is a linear strain calculate करना है, okay, if I want to calculate the strain in x direction, okay, strain in x direction, how will you calculate? Here this will be sigma x upon E is a linear strain and remaining will be lateral. So that mu into sigma y upon E minus mu into sigma z upon E. Similarly, epsilon y, that is epsilon y, sigma y upon E minus mu into sigma x upon E minus mu into sigma z upon E. Similarly, epsilon z, so sigma z upon E minus mu into sigma x upon E minus mu into sigma y upon E. So these are the formulas, and we are going to solve the numerical now. समझ में आया? हाँ ठीक है, ये सब आपको फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा. You have to remember all these formulas. Okay, now I will go for one numerical. Okay, we shall solve some numericals over this one, and we will finish this concept. Okay, अभी मैं एक न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए. A steel rod 6 meter long and 40 mm in diameter is subjected to an axial tensile force of 1000 kilonewton. Find the change in length, diameter and volume of the rod. Take E value equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and Poisson's ratio equal to 0.25. ओके, एक स्टील रॉड है, उसका लेंथ है 6 मीटर, उसका डायमीटर है 40 mm. वो जो रॉड है उसका एक्सियल टेंसाइल फोर्स मींस ओनली यूनिएक्सियल फोर्स अप्लाई हो रहा है, यूनिएक्सियल एक ही डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है 1000 किलो न्यूटन. एंड ई वैल्यू दिया है एंड म्यू वैल्यू भी दिया है, पॉइजन्स रेशियो भी दिया है. उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन लेंथ एंड change in diameter and change in volume of the rod. Okay, so ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके हमको सॉल्व करना है. सो यहाँ पे देखिए आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं. Again it is a circular bar. This circular bar is subjected to 1000 kilonewton load. 1000 kilonewton load. Length कितना है? Length is 6 meter. What is the diameter? 40 mm. Okay, so
E value is given 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. Already उन्होंने Newton per mm square में दिया है. There is no need to worry of converting. Convert का problem नहीं. So here mu value is also given 0.25. So हमको कैलकुलेट करना है change in length, change in diameter and change in volume. ये सब कैलकुलेट करना है to find out. Okay. So first आप लोगों को मालूम होना चाहिए चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है. कैन यू एबल टू कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ? कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा आप लोग चेंज इन लेंथ के लिए? Sir, PL/A. हाँ, यस एग्जैक्टली. सो यहाँ पे PL/A यूज कर सकते हैं आप लोग क्योंकि यूनिफॉर्म बार है. सो P है यहाँ पे L मीटर में दिया है, कन्वर्ट करो mm को 6000 आएगा वो. एरिया कैलकुलेट कीजिए सेपरेटली. E वैल्यू है, देखिए कितना आता है. कितना है देखिए. Sir, change in length 23.87 है. डेल्टा एल कितना है? 23.87 एग्जैक्टली 23.87 mm. ओके, सो आप लोग कैलकुलेट किया चेंज इन लेंथ. उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना है. यू कैन कैलकुलेट दी linear strain or longitudinal strain. So how will you calculate the longitudinal strain? Change in length to original length. Okay, so here you can see linear strain will be equal to change in length to original length. So change in length क्या है? Already आप लोग कैलकुलेट किया 23.87. Original length is 6000. So here this will be the linear strain or it is a longitudinal strain. देखिए कितना आता है? Sir, 3.98 into 10 raised to power minus 3. Yes, that is 3.98. 98 into 10 raised to minus 3 ना? हाँ बराबर. Okay, correct. So उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है lateral strain. So how will you calculate the lateral strain? So lateral strain is change in dia to original dia. But हमारे पास change in diameter पता नहीं, but original diameter है. So but we know that Poisson's ratio हमारे पास है 0.25. So I can calculate the lateral strain here it is. Lateral strain में calculate कर सकता हूँ. So I can write it is Poisson's ratio is equal to lateral strain to linear strain. So that is 0.25 equal to lateral strain as it is मैं लिखता हूँ
बिकॉज पता नहीं है लीनियर स्ट्रेन 3.98 into 10 raised to minus 3. So lateral strain देखिए कितना आता है. Lateral strain क्योंकि उन्होंने बोला है चेंज इन डायमीटर कैलकुलेट करना, ऑलरेडी चेंज इन लेंथ कैलकुलेट किया हम लोग. Sir, 9.95 into 10 raised to power minus 4. एक सेकेंड. और कितना बोले आप लोग? 0.95 into 10 raised to power minus 4. लेटरल 0.99 आ रहा है. सर मेरा 62.97 है. नो 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 नो. एक सेकेंड. 3.9 ऐसा कीजिए 0.25 into 3.98 into 10 raised to minus 3. 0.99 आता है देखो. सॉरी 0.99 आना चाहिए. सर मेरा 256 क्यों आ रहा है? 256 कैसा आता है? अरे 9.95 सुनो 10 raised to minus 4 है. Sir, 9.95 into 10 raised to power minus 4 आता है. तो उसको आगे करेंगे तो हाँ हाँ ठीक है 9.9 आ रहे तो उसको क्या करो 0.99 करके उसको 10 to the power of minus 3 में रखो. ओके सर. ओके उसका जो एक डिजिट कम कर रहे हैं हम लोग सो 3 में कन्वर्ट करेंगे इसको, मतलब 9.9 into 10 to minus 4 लिखने से minus 3 लिखेंगे. उसका वैल्यू आएगा 0.99 5 into 10 to minus 3 10 to minus 3 आएगा. ठीक है. सो लैटरल स्ट्रेन कैलकुलेट किया. नेक्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है. So once you know the lateral strain, I can calculate the change in dia to original dia. Means now I want to calculate the change in dia. So again इसको 0.995 into 10 raised to minus 3 into original diameter 40. So this will be the change in dia. Change in dia आ जाएगा आपको. Sir, 0.0398. Okay. It is 0.0398 mm. This is correct. So उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हाउ विल यू कैलकुलेट? ऑलरेडी मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था. इसके पहले हम लोग फॉर्मूला देखा है ना इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस. इसमें बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं? Sigma upon Young's modulus. हाँ that is sigma by E into 1 minus 2 times of mu. ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं. इस फॉर्मूला बिकॉज यहाँ पे यूनिएक्सियल फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके लिए. सो हियर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली. Volumetric strain is equal to sigma upon E 1 minus 2 times of mu. So already sigma है आपके पास ऑलरेडी. सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं ना उसमें क्या है. So sigma P upon A. P कितना था? 1000. It is 1000 kilonewton. 1000 kilonewton. Cross sectional area 5 by 4. It is 40. देखो स्ट्रेस कितना था? Sir, 795.77. 795.77. Okay. ठीक है. ये वैल्यू है आप ऑलरेडी अपने पास. सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यूज.
epsilon b is equal to 795.77 into 1 minus 2 times of 0.25 divided by e वैल्यू कितना है 2 into 10 raised to 5 देखिए कितना आता है ये that is volumetric strain Sir, 1.99 into 10 raised to power minus 3. 1.99 1.99 Into 10 raised to power minus 3. minus 3. Okay, so now I want to calculate the change in volume. So change in volume means क्या रहेगा? Original volume multiply करना पड़ेगा. So here 1.99 into 10 raised to minus 3 into original volume कैसे calculate करोगे? How will you calculate the original volume? Pi by Area 2 area into h. ओके क्योंकि आपके पास जो सर्कुलर सेक्शन है सर्कुलर बार है इसके लिए उसका वॉल्यूम आएगा पाई बाय 4 d स्क्वायर इनटू h आएगा सो हियर पाई बाय 4 विल बी सेम d स्क्वायर इज 40 स्क्वायर डायमीटर 40 है ना ओके h रहती पर क्या है इधर l रहेगा सो l इज 6000 So this is a volumetric change in volume. Change in volume देखिए कितना आता है? Quickly. Sir, 7.54 into 10 raised to power 6. नहीं चेक करो फिर से उतना नहीं आता है 15003.80. हाँ एग्जैक्टली ये सही आंसर दैट इज नियर अबाउट 15,000 ओके वो करेक्ट है आप जो बताया सेकंड स्टूडेंट दैट इज 15003 हाँ 003, yes. okay so it is 15,003 mm³ is the change in volume okay ठीक है so you people take 5 minutes break and we will start with another numerical 5 मिनट ब्रेक लीजिए
Yes, shall we start? Shall we start? Yes, sir. Okay, sir. Okay, fine. So दूसरा न्यूमेरिकल है. So this is ट्राइएक्सियल लोडिंग. बाइएक्सियल लोडिंग के लिए भी सेम रहेगा. ट्राइएक्सियल लोडिंग करते क्योंकि थोड़ा सा ये चेंज है. डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपको इजी प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम थोड़ा इजी लगेगा. ठीक है. सो यहाँ पे रीड करता हूं. A rectangular block 250 mm by 100 mm by 80 mm is subjected to triaxial loads of 480 kilonewton tensile in direction, okay, of its length, 900 kilonewton tensile on the 250 mm by 80 mm faces, 1000 kilonewton compressive load on 250 mm by 100 mm faces. Assume Poisson's ratio as 0.25. Find in terms of modulus of elasticity E of the material, strain in the direction of each force. If E equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square, find the value of modulus of rigidity, bulk modulus, and of the material of the block. Also calculate the change in volume of the block due to the application of the loading specified above. So यहाँ पे दो केसेस हैं. So केस 1 में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. First we have to calculate the this strain in each direction. Okay, like we want to calculate the strain in x direction, y direction, z direction. उसके बाद सेकेंड बिट दिया है उन्होंने, कैलकुलेट द जी वैल्यू, के वैल्यू एंड चेंज इन वॉल्यूम. ओके, सो वो कैलकुलेट करना है. सो उसके पहले डायग्राम ड्रा करता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा. लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है डायमेंशंस दिए, विथ रिस्पेक्ट टू द डायमेंशंस के हिसाब से उन्होंने लोड अप्लाई किया है. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. दिस इज द ब्लॉक. Okay, so here this is having a length 250 mm. This is having width 100 mm. This is having depth, it is 80 mm. 80. Okay, so यहाँ पे टेंसाइल लोड 480 किलोन्यूटन. ये भी टेंसाइल लोड 480 किलोन्यूटन फोर्स है. उसके बाद this is the again tensile load in y direction, that is 900 kilonewton. This is also 900 kilonewton. And sorry, it is not tensile, it is the compression. So here z direction में 1000 kilonewton apply हो रहा है, that is in terms of compression. Okay, so अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया में लोडिंग अप्लाई हुआ है. ओके, अगर मैं आपको टेंसाइल लोड बताया था तो 480 कौन सा क्रॉस सेक्शनल में अप्लाई हुआ है, दैट इज लेंथ के हिसाब से अप्लाई हुआ है. लेंथ के हिसाब से बोले तो क्या होगा वो, दैट इज 100 mm by 80 mm इज द 480 किलोन्यूटन. 1000 किलोन्यूटन कहां पे अप्लाई हुआ है, 1000 किलोन्यूटन जो है 250 by 100. सो चेक कीजिए. यस, दैट इज 1000 250 by 100. यस, इज इट 100?
Yes, sir. That is 1000 is 250 by it is the 100 mm. Okay, fine. And next is 900 जो है 900 is 250 upon 80 250 upon 80. ओके ठीक है 250 अपॉन 80 में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी हमको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस इन ईच द डायरेक्शन। ओके सो इसके पहले आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ ई वैल्यू नहीं दिया है पहला केस में, आपको इन टर्म्स ऑफ ई में कैलकुलेट करना है स्ट्रेन वैल्यू। ओके सो लेट्स वी विल स्टार्ट विद दिस वन। सो स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा। पहले क्या करना है पता है, ये फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू here first is I want here this is the thing, so here it is x, it is y, it is z। कभी कभी यहाँ पे चेंज हो सकता है z y एंड z एक्सेस, z का जगह पे y आ सकता है, y का जगह पे z भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अलग तरीके से दिया है x y z। so here now the first thing is I want to calculate the sigma x। So I will calculate the sigma x. This is the cross sectional area, particularly this one। Okay, so इसके लिए क्या है 480 into 10 raised to 3, cross sectional area is 100 into 80, so this is the sigma x, Newton per mm square। And second thing is sigma y। Sigma y is applying for the क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका है वो नीचे से रहेगा। ओके 1000 किलो न्यूटन, सो उसका आएगा सॉरी इट इज 1000 ना, हाँ इट इज 1000 into 10 raised to 3, it is not 1000, it is 900 actually is 900। ओके 900 है 1000 नहीं है। ओके क्योंकि यस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा 250 by 80। हाँ 250 by 80 is 250 by 80। सिमिलरली सिग्मा जेड, सिग्मा जेड देखा तो क्या है वर्टिकल है, तो वर्टिकल में देखा तो वो नीचे से रहेगा, दैट इज 1000 into 10 raised to 3। ओके सो इट इज 250 by 80, so 900। so हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यस दिस इज द सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिग्मा i y का रहेगा। ये जो क्रॉस सेक्शनल है सिग्मा y के लिए है, अगर वो ये जो क्रॉस सेक्शनल आएगा दिस इज फॉर द सिग्मा z के लिए, सिग्मा y के लिए, सिग्मा x के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो आपको ये मालूम होना चाहिए। सो इसका 250 into 100, so these are the cross sectional areas। देखिए कितना आता है सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z। So sigma x 60, हाँ sigma y 45, and sigma z 40. यस एग्जैक्टली करेक्ट, बट साइन बताइए मुझे सिग्मा x क्या है, इट इज 60 हाँ पॉजिटिव। positive. यस Sigma y also positive. Sigma z negative. yes exactly। so sigma y 45, this will be minus 40। सिग्मा जेड नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दी कंप्रेसिव है। ओके जो लोड अप्लाई हो रहा है कंप्रेशन में है, सो इसके लिए उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। सो सिमिलरली हियर नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेस इन x डायरेक्शन। ओके सो दैट इज स्ट्रेस इन x डायरेक्शन। सो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस वन,
already you know that sigma x upon E minus mu into sigma y upon E minus mu into sigma z upon E. So here I think we know Poisson's ratio. Poisson's ratio दिया है ना? Poisson's ratio is 0.25 is given. Poisson's ratio already दिया है. That is 0.25 is given. Only thing is what? E value unknown है. Okay, E value उन्होंने बोला है calculate the calculate the strain in terms of the modulus of elasticity. ऐसा बोला है उन्होंने. So this indicates 1 by E will be common. So 60 minus 0.25 sigma y is 45 plus क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. This is 0.25 into 40. So this is the epsilon x. And similarly, epsilon y. Epsilon y, sigma y upon E minus mu into sigma x upon E minus mu into sigma z upon E. ठीक है. So similarly this epsilon z मुझे बताइए कितना आता है. देखिए आंसर. लेकिन यहाँ पे ई वैल्यू पुट नहीं कर रहा है क्योंकि ई वैल्यू पता नहीं है. केस 1, दिस इज केस 1. 58.75. 58.75 is correct. First one, that is the epsilon x. 58.75 divided by E. And epsilon y. Sir, 40. 40 exactly. Divided by E. Epsilon z. आई थिंक आप लोग एप्सिलॉन जेड का गलती करोगे लग रहा है मुझे. यस, लेट्स सी दैट जस्ट टू टेल द आंसर. उसके बाद मैं बोलता हूं आपको. अगर आंसर बराबर आए तो आप लोग सही सॉल्व कर रहे हैं, अगर नहीं तो गलत रहेगा. Sir, minus 66.25. यस एग्जैक्टली, माइनस 66.25 इज करेक्ट बिकॉज सिग्मा जेड वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है. बाकी रिमेनिंग टर्म से आपको माइनस में आ रहा है, इसके लिए माइनस 66.25 इज करेक्ट. Minus 66.25 divided by E. This is the epsilon z. This is the case 1. Case 2 में क्या बोला है उन्होंने? If E value is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square, find the modulus of rigidity, bulk modulus, and change in volume of the material. Change in volume of the material. So कैलकुलेट कर रहे हैं आपको. Shall we go next? Shall we go further? Case 2 quickly. और आधा घंटा है टाइम. ठीक है. So case 2, if E is equal to, अगर if E equal to 10 raised to 5 Newton per mm square, then to find G, K, and change in volume. That is change in volume. So first thing is
here mu value is given also, mu value भी same रहेगा. So आप लोग G and K वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन E एंड G. सो उसका हिसाब से आप लोग G वैल्यू एंड K वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट. And now only thing is you need to calculate epsilon V, that is the change in volume. Okay, so change in volume के लिए क्या करना पड़ेगा? First is already you people know that formula, volumetric strain change in volume to original volume, that is sigma x plus sigma y plus sigma z divided by E bracket 1 minus of 2 mu. Okay, ये formula use करना है directly. So change in volume is equal to sigma x कितना आएगा? Sigma x 60 plus 45 minus 40 divided by 2 into 10 raised to 5 into 1 minus 2 into 0.25. So into V, capital V. ये जो सर्कुलर बार है ना ये, yes ना, it is not circular bar, it is a rectangular bar is there. तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम कैलकुलेट वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, that is 250 100 into 80. So this is in terms of mm cube. देखिए कितना आता है? Sir, 325. एक सेकंड ना. हाँ, 325 is correct. 325 mm cube is the answer. And remaining G and K आप लोग कैलकुलेट कीजिए यूजिंग रिलेशन, आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट आई विल गो फॉर, कौन सा न्यूमेरिकल ले लो? ठीक है, आप लोग सॉल्व करो तब तक, बाकी स्टूडेंट भी सॉल्व करने दो. Okay, so now I will go for one concept, that is principle of superposition. हो गया आप लोगों का, सॉल्व किया? हाँ सर. Okay. So now I will explain about this compound section, or it is a member in series. Okay, उसके बाद principle of superposition explain करता हूँ. What is a compound section or composite section? Anybody, do you know about this? Composite section क्या होता है और compound section क्या होता है? Composite मतलब क्या है? Composite मतलब क्या होता है आपका हिसाब से? Combined material, combined section. Yes, combined section means what? The material which is combined with more than two types of property. Okay, I can say it is a two different type of material which is connected together. So that kind of material is known as the compound section, or it is a composite section, or it is a member in series. Okay, so I can say it is if two or more members are of having the same material. Okay, compound section क्या होता है? If two or more material members are of having the same material are connected together and subjected to the different loadings. Okay, that combination is called as the compound bar. Compound bar is the property same रहेगा material का, but
it is connected with a different 2 or more materials, and uska load will be applicable differently. So that is known as a compound bar. And composite bar is nothing but it is a material will be having a different property. So एक aluminium रहेगा, एक steel, एक mild steel रहेगा, एक bronze रहेगा. So that is a composite. But compound bar is nothing but the जो material है उसका property same होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, but अलग अलग members use कर सकते हैं हम लोग divide करके. So and अलग अलग section में अलग अलग load apply हो सकता है. That is a compound section, or it is a members in series. And principle of superposition क्या होता है? Principle of superposition is nothing but when member is subjected to the forces on its external as well as internal. Okay, so जो member है, member के ऊपर load externally भी apply कर सकते हैं और internally भी subject होता है. Okay, and it is very difficult to determine the deformation in such condition. So वो जो member है, member में particularly external load and internal load की वजह से तो deformation easily find out नहीं कर सकते हम लोग. It is not possible to find out the deformation easily. So that we are going to use the one principle, that is the superposition. That is the principle of superposition. So to determine the deformation of on the forces on the member are split up in such a way that it remains equilibrium of individual as well as the whole member. अगर मैं जो कंपाउंड मेंबर है उसको डिवाइड किया तो भी उसका क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, एंड डिफॉर्मेशन शुड बी ये सेम में आना चाहिए. ओके, इंडिविजुअल कैलकुलेट किया तो भी उसका होल मेंबर होना चाहिए. सो देन द नेट डिफॉर्मेशन इन द मेंबर is the algebraic sum of the deformation of individual member is called as the principle of superposition. So what is the meaning of principle of superposition? The net deformation in the member is the algebraic sum of deformation of each individual parts. Okay, this is called as the principle of superposition. So मैं यहाँ पे diagram ड्रा करता हूँ, आप लोग देखिए. First is compound bar or member. Compound bar का तो here initially हम लोगों ने देखा है जो member था that was only one cross section, okay, throughout the length, but यहाँ पे diameter भी अलग हो सकता है, length भी अलग हो सकता है, but material property एक ही रहेगा, but load भी अलग अलग subject हो सकता है. So here you can see here this is the one member, this is the another member, this is the another member. So here इसके ऊपर load I can say is a PA, this will be a PB, this will be a PC, and this will be a PD. I can say this P1, P2, A, B, C, D. So here it is a length L1, length L2, length L3. So this kind of member is known as the compound member, or it is a member in series, or it is a compound bars. So diameter is D1, D2, D3, D3. Okay, so but property मतलब क्या है यहाँ? mu value and e value will be remain same, or g value or k value will be remain same throughout the this length. अगर section AB है, member AB, e value will be remain same, member BC e value will be remain same, CD e value will be remain same. So ये member को compound section हम लोग कहते हैं. So उसके बाद principle of superposition क्या है? Principle of superposition is nothing but it is the net deformation. Okay, the net deformation will be equal to algebraic sum of that the AB portion, BC portion and CD portion. So I can write it is, अगर इसको divide किया तो भी क्या होगा? अगर ये member divide किया, समझो. For example, AB, this is the AB. So member should be equilibrium होना चाहिए. अगर तो इसको डिवाइड किया तो भी मेंबर इक्विलिब्रियम होना चाहिए. सो हियर दिस विल बी P1,
This will be P, sorry, it is a P1. It is also P1. This is 1. And second member, that is BC. This is P2. Yes, this is P2. So here, this is the second member. Third member, this is P3. This is P3. This is the third member. Okay. So अगर ये जो member है, अगर मैं divide किया तो भी क्या होना चाहिए? That member should be remains equilibrium, maintain the equilibrium. Okay. अगर combine किया तो भी equilibrium में होना चाहिए, divide किया तो भी equilibrium होना चाहिए. Equilibrium means nothing but the जो भी forces है equally apply होना चाहिए member को. Total summation of fx किया तो भी उसका 0 आना चाहिए ultimately. Okay. उसके बाद हमको deformation in member AB, BC, CD. Okay, so individually calculate that. So this will be the principle of superposition will saying that total deformation in member is equal to deformation in member 1, deformation in member 2, plus deformation in member 3. So this is the sum of, or we can say it is the algebraic sum. So here it is algebraic sum, or you can say it is a sum of deformation in one member, second member, third member. So it is algebraic sum. Is it clear? Compound R क्या होता है? Principle of superposition क्या होता है? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So again आप लोगों को पता है डेल्टा L1 कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 के लिए डेल्टा L1 कैसे कैलकुलेट करना है? So P1 L1 upon A1 into E. यस, अगर मैं डेल्टा L1 मेंबर 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो दैट इज PL अपॉन AE. ओके, सो PL अपॉन AE इज नथिंग बट 1 सेकंड. Okay, so it is PL L1 A1 E. So E is constant, so that is there. So अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, आपको समझ में आएगा. So let's solve with one numerical and you can understand the concept. Okay. A circular bar having 200 mm square area is subjected to the axial load as shown in figure. Okay, इसमें always आपको डायग्राम दिया जाता है तो इसका हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर डायग्राम नहीं दिया तो वर्डिंग्स में दिया रहता है. ओके, उसके हिसाब से आपको डायग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा. जो वर्डिंग में दिया जाएगा उसको डायग्रामेटिकली कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए. ओके, ऐसा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, अ सर्कुलर बार इज हैविंग. आज मेरा ये टॉपिक के ऊपर लास्ट लेक्चर रहेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है. मंडे से जो सिलेबस में दिया है उसके ऊपर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. ओके, सो अभी आज जितना एग्जांपल सॉल्व करूंगा दिस इज द लास्ट लेक्चर अबाउट दिस टॉपिक. ये लेसन सिलेबस में नहीं है. ये लेसन सिलेबस में नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी तक जो एक्सप्लेन किया हूँ वो सिलेबस में नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी से आज ही सिलेबस आया हुआ है डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट को. क्योंकि इसके पहला टोटल कितना था? 54 लेक्चर था. अभी उन्होंने 50% ही पकड़ा है. ओनली 25 लेक्चर्स कवर करना है. 25 लेक्चर के हिसाब से उन्होंने सिलेबस दिया गया है. तो मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ, आप लोग फॉलो अप कीजिए उसका. सर फिर एग्जाम भी उसी के ऊपर होगी ना? यस, उसके एग्जाम भी उसके ऊपर ही होगा. अभी तक जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट इज फॉर दी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. ओके, इसके ऊपर आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना अभी तक. इसके ऊपर अगर हो सकता है तो आप लोगों को करना है तो करो पर्सनली पढ़ाई, क्योंकि ये वेस्ट नहीं होता है फ्यूचर में भी. ओके, लेकिन एग्जाम में नहीं रहेगा. ओके, नाउ आई विल गो फॉर न्यूमेरिकल अबाउट दिस. अ सर्कुलर बार having 200 mm square area is subjected to the axial load as shown in figure. Find the value of P and total elongation. Take E equal to 200 kilonewton per mm square. So यहाँ पे न्यूमेरिकल है.
एक्चुअली ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। आई थिंक आप लोग डिप्लोमा में पढ़ाई किया रहेंगे ये सब। ओके, so it is 50 kilonewton load. This is P. This is 35 kilonewton and it is 65 kilonewton. I can name it A, B, C, D. So here is 500 mm. This is 600 mm. This is 700 mm. 700 mm. And क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन सेम, क्योंकि ये जो मेंबर है क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, दैट इज 200 mm. 200 mm square, and E value is 200 kilonewton per mm square. Okay, so here we want to calculate P first, उसके बाद total elongation calculate करना। So to find P and delta L. Okay, so how will you calculate this P? Okay, so P calculate करने के लिए आपको मैं बताया था, so जो भी इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, so all these force should be equilibrium. Equilibrium मतलब क्या होता है? जो भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब वो सम किया तो उसका जीरो आना चाहिए, दैट इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तभी उसका क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा बॉडी। ओके, कुछ डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है, दैट मेंबर विल नॉट बी इन ए रेस्ट पोजीशन। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो मेंबर है, मेंबर के ऊपर ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली लोड एक्ट हो रहा है। ओके, वो भी एक्सियली है, इसके लिए समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0। सो एक साइन कन्वेंशन है इसका, लेफ्ट टू राइट के लिए पॉजिटिव लेना है एंड दैट इज राइट टू लेफ्ट के लिए नेगेटिव लेना है, साइन कन्वेंशन। अगर लोड लेफ्ट टू राइट जा रहा है पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव। ओके, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट विद दिस समेशन ऑफ fx 50 is -50 आएगा and plus P -35 plus 65 equal to 0. So now we can calculate P. -50, yes, it is going right to left, plus P -35 plus 65. देखिए कितना आता है, 20 kilonewton. 20 kilonewton is correct. वो प्लस आ रहा है ना, ओके, प्लस मतलब कौन सा डायरेक्शन है, वो इनिशियली जो डायरेक्शन है, ओके, लेफ्ट टू राइट, ओके, उसका भी सेम डायरेक्शन रहेगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी पॉजिटिव आ रहा है, दिस इंडिकेट्स इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, दिस विल बी द 20 किलोमीटर। सो उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है डिफॉर्मेशन इन मेंबर ए बी, डिफॉर्मेशन इन मेंबर बी सी, मेंबर सी डी। इंडिविजुअली में कैलकुलेट करना है डिफॉर्मेशंस। सो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, हियर वी हैव टू डिवाइड द सेक्शन। सो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, डिवाइड देखिए कैसा इसको डिवाइड करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इनिशियली आप लोगों को मेंबर ए बी है, मेंबर ए बी का मेंबर ए बी जो है 50 किलो न्यूटन लोड कैसा जा रहा है, इट इज अवे जा रहा है। ओके, अगर जो मेंबर ए बी है और एक दूसरा साइड में भी पॉइंट बी में भी उसका टेंसाइल में भी होना चाहिए, लेकिन सेम लोड ही अप्लाई होना चाहिए, देन ओनली इट इज बैलेंस।
अगर इसको यहाँ पे 50 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी उसका 50 किलो न्यूटन ही अप्लाई होना चाहिए, then only this will be the balance. लेकिन इसको कैलकुलेट करेंगे होता है कि नहीं होता है. ओके, so let us see this. So again using the same sign convention, left to right and right to left का plus, okay, plus p, that is plus 40 minus 35 plus 65. देखिए ये कितना आता है, कितना दे देखिए 50 आता है. यस 50 प्लस 50 आ रहा है. ओके 50 उसका नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसके लिए दिस इज गोइंग दिस वे, सो आई कैन राइट इट इज द 50 किलो न्यूटन. लेंथ इज 500. ओके, सिमिलरली सेकंड वाला देखेंगे. सो सेकंड सेक्शन का लास्ट पेज है क्या, ठीक है. सो सेकंड मेंबर के लिए हम लोग ड्रा करेंगे यहाँ पे, दिस इज BC. ओके, सो BC के लिए एक फोर्स 50 किलो न्यूटन यहाँ पे लिखता हूं, 50 ऐसा जा रहा है, 35 ऐसा जा रहा है, and sorry, it is not 35, it is 20. उसके बाद 35 is going this way, 65 is going this way, 65 is going this way. Yes, हम लोग लिख सकते हैं इसको -50 plus 20. This is -30. Am I right? And this is 35 plus 65. So this is plus 30. Plus or minus? ओके, करेक्ट है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे देखिए सेकंड मेंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पे -30 प्लस 30. ओके, सो इसका मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ यहाँ पे. सो हियर दिस विल बी दी first 30 is going this way, -30 is going this way, that is nothing but again ये भी जो मेंबर BC जो है, it is also subjecting a tensile force of 30 kilonewton. This is length कितना है सर, 600. Length 600. Similarly, last one, मेंबर CD जो है, it is carrying a 65. डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं 65. There is no need to change. इसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए आप लोग. So here this will be 65 किलो न्यूटन, ये भी आपका 65 किलो न्यूटन जाएगा. लेंथ कितना है इसका, 700 mm. So this is 3 and 700 mm. 700 mm. ओके, सो अभी आप लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट कीजिए डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3. पेज भर गए ना, और एक पेज नहीं इसमें. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, Sir, delta L1 0.625. मुझे टोटल बता दो ना. 0.625 करेक्ट है, 0.625. ओके, ठीक है, इंडिविजुअली बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. 0.625 डेल्टा L2
डेल्टा L2 देखिए, डेल्टा L, Sir, delta L2 equals to 0.45 yes, 0.45, and delta L3 1.137. डेल्टा L3, 1 सेकेंड, कितना है? 0. No, 1.135. 1.135 ना, नहीं, 1.137. 1.137, correct. ओके, बाद में आपको कैलकुलेट कीजिए डेल्टा L, डेल्टा टोटल नेट डिफॉर्मेशन, it will be the delta L1, delta L2, delta L3, that is the net deformation. Sir, 2.212. Okay, 2.212, that is 2.212 mm. So this is the net deformation. Okay, so यहाँ पे बीच में आप लोगों को ये जो मेंबर है इंडिविजुअली कैलकुलेट किया है, सब सारे सेक्शन में टेंसाइल फोर्स ये अप्लाई हो रहा है, इसके लिए प्लस आ रहा है। अगर कभी कभी कंप्रेशन में भी सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, तो बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन के हिसाब से कंप्रेशन हो रहा है तो उसका माइनस में लिखने के लिए लिखना पड़ेगा। ओके, डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने टाइम पे। So here now it is the all our tension, so that it will be delta L1, delta L2, delta L3. So like this we are going to solve the numerical. So बाकी things देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर टाइम मिला तो इसके ऊपर सॉल्व करेंगे on your demand. So I will try to solve, and remaining thing next lecture onwards. So I will explain about that syllabus, whatever the university mentioned syllabus for your third semester. So we shall go through this one, and syllabus will be very simple. Okay, especially for your third semester point of view. So आराम से आप लोग लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। डिप्लोमा में 3 सिलेंडर आप लोग पढ़ाई किया था क्या? What, sir? 3 सिलेंडर्स का बारे में, 3 एंड स्पेरिकल सिलेंडर्स। नहीं सर। ओके, ठीक है, वो सिलेबस है। उसके बाद प्रेम्स का ऊपर था क्या? पोर्टल प्रेम, एसएफडी, बीएमडी, एएफडी फॉर पोर्टल प्रेम। हाँ सर, वो थियोरिकल था थोड़ा सा। ओके, ठीक है, उसके ऊपर है। उसके बाद टॉर्जन का है। टॉर्जन में टॉर्जन फॉर्मूला आता है, उसके ऊपर फॉर्मूला सॉल्व करना है। स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ाई किया? हाँ सर। ओके, उसके ऊपर ही है, ठीक है। Syllabus is simple, but even I will send in your group. Just you refer, and according to that we shall study. ठीक है, आज का लेक्चर में कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो just you put your roll numbers in chat box and we will finish the lecture. And बाकी स्टूडेंट किधर है? टोटल 29 स्टूडेंट ही ज्वाइन किए हैं, टोटल 43 स्टूडेंट है। Where is remaining students? क्या पता सर, उनको पता। एक सेकेंड रुको, लीव मत करो, लेकिन रूल नंबर पुटअप कीजिए चैट बॉक्स में। लेकिन अभी जो स्टूडेंट ज्वाइन किया है, ओनली सेंट जॉन स्टूडेंट है कि बाहर का स्टूडेंट है? बाहर का डिप्लोमा स्टूडेंट है? बाहर के डिप्लोमा वाले भी है। सेंट जॉन स्टूडेंट कितने हैं फिलहाल? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सिर्फ 2 स्टूडेंट। मैं बताता हूँ, रुको, मेरे पास लिस्ट भी मिल रहा है कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। प्रांजल पाटिल इज ओके, प्रांजल पाटिल है, एंड रोहिणी, पायल पाटिल, उन्नति, मोहित, and Suraj Yadav is there, and Prathamesh and Sonawle. Okay, Sonaun, Snehal, and remaining student Aditya Kardikar is there, Amit Yadav is there, and Ankit Mukani is not here. Arya Sankhe is also
St. John, right? Yes, sir. And Ashish Panasgaonkar. आशीष पणसगांवकर है कि नहीं? मोहित रावल, निर्भय चौधरी, पायल पाटिल, प्रांजल पाटिल. Okay, all these are from St. John Diploma. And remaining students like कौन है? सुचित. हाँ सर, आप कौन सा कॉलेज से हो? मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई। Mumbai. Okay, very good, very good. And another student like Brandon Rumao. आप कहाँ से हो? Vartak College. Okay, very good. Okay, Vartak College. And Ajit, Ankit. ठाकुर पॉलिटेक्निक. हाँ सर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आई थिंक आप लोगों को मंडे बुलाने लगता है, आई थिंक सभी लोग मंडे को कॉलेज को आ रहे हैं ना? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. तो सबको मैसेज मिला है. आप लोग पहले यस. ओके ओके ओके, फाइन फाइन. सो मंडे आप लोगों को इंडक्शन प्रोग्राम है, एमएमएस साल में रहेगा, तो आके ज्वाइन करो. उसके बाद डिपार्टमेंट में आके सबको मिलो. ओके, डिपार्टमेंट थोड़ा यस. सो मंडे से आप लोगों को कंपलसरी लेक्चर को बैठना ही पड़ेगा. हाँ सर. यस, दैट इज देयर. ठीक है. तो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी, अदरवाइज जस्ट पुट. ऑलरेडी आप लोगों ने हाँ बोलिए. 215 तक कॉलेज है क्या? यस, 215 तक कॉलेज है. हाँ 2:15 तक बोल रहे हैं. और 8 to 2 तक रहेगा. और MIS चालू हुआ है क्या? MIS ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. आई थिंक आप ऑलरेडी लेकिन अटेंडेंस दिखाई नहीं रहा है. दिखाई नहीं दे रहे तो पता नहीं, आप लोगों को अभी तक अपडेट नहीं हुआ लगता है. मेरा सब्जेक्ट का तो दिखाई दे रहा है. कल दिखा रहा था. चेक कीजिए आप लोग. MIS में भी आपका प्रेजेंट का ये सब्जेक्ट हुआ है. देखते, मेरा सब्जेक्ट का एक ही हुआ है अभी तक. एक्चुअली टोटल 5 लेक्चर लिया मैंने. देखते उसका बाद में. यस, आप लोग लीव कीजिए लेक्चर देन. ओके, थैंक यू सर. यस यस, वेलकम. Thank you, sir.